हो, सेल्फ एडजस्टिंग, इट कैन चेंज अकॉर्डिंग टू द नीड, जैसी नीड होगी वैसा वो चेंज होता चला जाएगा. दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू एक्सपीरियंस. ओके, so let's go ahead. For understanding this, we need to consider the condition for upper speed and lower speed on a bank road. So give the heading as upper speed and lower speed on a condition for just wait for a while. So here we are going to deal with a condition there's some problem with the camera. Can you see my notebook? Okay. Yes. We are going to deal with condition for maximum and minimum speed on a bank road. So of course, when we are going to deal with a maximum or a minimum speed, here we are not going to take an ideal road. Here we are going to have some, what I can say, friction. Tough road. Okay, so let's move ahead. Yes. Let's move ahead. This is the road which I am considering. That was the reason कि मैंने आपको बोला था कि go through करो. आपको वो resolution आपको याद आना चाहिए. This is my vehicle which is moving. This is the normal, which is at particular angle. Centrifugal force बाहर की तरफ लगेगा. That is your mv square by r. Is this clear what I said? Yes. Is this clear what I said? Yes. Okay. Now, of course, mg सीधा नीचे की तरफ लगेगा. इस mg को थोड़ा ऊपर की तरफ extend कर रही हूँ. I'm extending this mg. If this is theta, this was 90. This was 90 minus theta, vertically opposite angle. This is 90 minus theta. The whole is 90, so this will be theta. This is my normal. Normal का ये n cos theta हो जाएगा. And of course, if you'll draw a component perpendicular to it, so just try to draw a component which is perpendicular to it. It will something come like this. mv square क्या रखे? क्या हुआ? square क्या रखे? Opposite आएगा ना n sin theta. Yes. किसके opposite आएगा? mv square. सेंट्रीफ्यूगल के लाइन में आएगा वो ना. Yeah, of course. So that's what I said. Now you have to draw it perpendicularly. Yes. ठीक है? Yes.
So here this is how it goes. Now, so basically it should make 90 degrees. That's all. So let's say the first condition. Let's take the first condition. That is your velocity v1 is smaller than the velocity that we have studied. That is your, I am saying that v1 is smaller than your rg tan theta. ठीक है? If v1 is smaller than rg tan theta, basically I just want to say that the centripetal force somewhere is dominant over centrifugal force. That is mv1 square by r is smaller than n sin theta. जब मेरा वेलोसिटी, अगर आपको वेलोसिटी का फॉर्मूला याद हो, हमने वेलोसिटी का फॉर्मूला निकाला था. सो आई एम सेइंग कि दैट कि मेरा जो v1 है वो rg tan थीटा से छोटा है. ये कंडीशन का मतलब ये है कि मैं अभी फिलहाल वेलोसिटी कम ले रही हूँ, जिसके हेल्प से मेरा जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो यहाँ पर डोमिनेंट है. आई एम सेइंग माय सेंट्रीपिटल फोर्स इज डोमिनेंट. इज दिस क्लियर व्हाट आई सेड? Yes. 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 When my centripetal force is dominant, मेरी जो गाड़ी है, अगर मेरा सेंट्रीपिटल फोर्स ज्यादा डोमिनेंट होता है तो मेरी जो गाड़ी है वो सेंटर की तरफ आने की कोशिश करेगी. अब यहाँ पर क्या होगा बच्चों कि जब मेरी गाड़ी सेंटर की तरफ आने की कोशिश करेगी, मेरा जो फ्रिक्शनल फोर्स है ना, मेरा जो फ्रिक्शनल फोर्स है, अब वो सेंट्रीपिटल फोर्स को सपोर्ट नहीं करेगा. नाउ इट विल नॉट सपोर्ट माय सेंट्रीपिटल फोर्स. अब वो क्या करेगा, सिंस सेंट्रीपिटल फोर्स डोमिनेंट हो रहा है और इसको इस डायरेक्शन में खींच रहा है, तो आपका जो फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा ना बच्चों, जो फ्रिक्शनल फोर्स आपका लगेगा वो कुछ ऊपर की डायरेक्शन में लगेगा, ऐसा. समझे व्हाट आई सेड? दिस इज हॉरिजॉन्टल. आपका फ्रिक्शनल फोर्स कुछ इस तरीके से ऊपर की डायरेक्शन में जाएगा. अब इस फ्रिक्शनल फोर्स के दो कंपोनेंट बनेंगे. एक कंपोनेंट, इफ आई से दिस इज एस थीटा, ये आपका होगा fs cos थीटा, और एक होगा ऊपर की तरफ FS sin theta. दैट इज fs sin थीटा. FS sin theta. फिर से समझाती हूँ कि अगर मैंने वेलोसिटी बहुत कम ली है, इसका मतलब ये है कि मैं कह रही हूँ कि मेरा जो सेंट्रीपिटल फोर्स है जो कि n sin थीटा प्रोवाइड कर रहा है, वो सेंट्रीपिटल फोर्स डोमिनेंट हो रहा है. यहाँ पर अब मेरा फ्रिक्शन टुवर्ड्स सेंटर नहीं लगेगा. अब मेरा फ्रिक्शन ये नहीं चाहेगा कि मेरी गाड़ी लुढ़क कर सेंटर में गिर जाए. तो मेरा फ्रिक्शन क्या करेगा, अब जिस डायरेक्शन में सेंट्रीपिटल, दिस इज द डायरेक्शन. अगर आपको सर्कल याद हो, ये आपका सर्कल है और ये आपके सेंटर की तरफ आप जा रहे हो. तो अगर आपकी गाड़ी अब सेंटर की तरफ लगने वाला फोर्स अगर बढ़ गया है, तो फ्रिक्शन उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगकर आपकी गाड़ी को गिरने से रोकेगा या रोल अप होने से रोकेगा. सो अब आपके फ्रिक्शन का डायरेक्शन हो जाएगा टुवर्ड्स आउटसाइड. दिस विल बी द फ्रिक्शनल फोर्स. इसके दो कंपोनेंट होंगे, fs cos theta and fs sin theta. Is this clear what I said? Yes. 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 Okay. Now if you can see, तो कौन से फोर्सेस एक डायरेक्शन में है और इन फोर्सेस को कौन कौन बैलेंस कर रहा है? आपके सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और fs cos theta को बैलेंस कौन कर रहा है? Who is N balancing? sin N theta. sin theta. Sin theta, for sure. So here we can write this from the diagram that mv square by r plus fs cos theta is balanced by n sin theta. Is this everyone clear? Yes. Yes. Okay. Next, अब जरा ये ऊपर की तरफ लगने वाले फोर्सेस देखते हैं. ऊपर की तरफ एक आपका n cos theta लग रहा है. दूसरा कौन सा लग रहा है? दूसरा ऊपर की FS तरफ sin Sin theta. theta. ये मैंने अलग से, देखो बच्चों इसका रिजोल्यूशन भी यहीं पर आएगा, पर मैंने ये अलग से इसलिए लिखा है कि आप लोगों को समझ सके. ठीक है? ये फोर्स, ये फ्रिक्शनल फोर्स अब ऊपर की तरफ लग रहा है, मतलब बाहर की तरफ लग रहा है. इसके दो कंपोनेंट बन रहे हैं, एक इस डायरेक्शन में, एक ऊपर की डायरेक्शन में. अब ऊपर की तरफ डायरेक्शन में लगने वाले दो फोर्सेस हो चुके हैं. दैट इज योर
fs sin थीटा प्लस n cos थीटा, और ये दोनों मिलकर किसको बैलेंस कर रहे हैं? ये किस MG. बैलेंस में? mg यहाँ तक सबको समझा? Yes, ma'am. yes ma'am फटाफट फटाफट पहले हेडिंग दे दिया, पहले ये ड्रॉ करके लो प्रॉपरली। मैम आप म्यूट पे हो। If you have problem in drawing that, you can take the help of this diagram. This one is okay or the one I have drawn is okay? Which one you want? This one. मैम फिर टॉपलिंग को प्रिवेंट करने के लिए फ्रिक्शन ज्यादा होना पड़ेगा फ्रिक्शन अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेगा। एंड लेंथ ऑफ द कार भी छोटा होना चाहिए ना, मतलब पतला हाँ वो कार। तो है, कार ज्यादा लोडेड नहीं होना चाहिए, नॉर्मल जो हाइट कवर कर सके वही होना चाहिए, सो दैट अगर हाइट या लोड ज्यादा हो गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी, तो फिर वहां पर मेंटेनेंस करना इजी नहीं होगा। टॉप लिंक कंडीशन आएगा। जस्ट ड्रॉ दिस अवे और रिजॉल्व करो खुद से। आप डायग्राम ड्रॉ करके लो और खुद से रिजॉल्व करने के लिए ट्राई करो। बेसिकली दिस इज n cos theta n sin theta, इनके बीच में there should be a 90 degree. There is a frictional force which is particularly acting outside. Sorry, there is a fugal force which is particularly acting outside. Frictional force का डायरेक्शन ऊपर की तरफ होगा, so basically horizontal के साथ it will make an angle theta, या फिर अगर आप ज्योमेट्री भी देखो, so this is a geometry, अगर आप इसको एक straight line consider करो, so you can find out that this is theta. Basically it's a geometry, so you can resolve it into two, fs cos theta, fs sin theta. So I'm removing it. Try to resolve it by your own now. खुद से try करो। ये याद रखो कि this should be, this ns cos theta should be in 90 degree with the n sin theta. Once you're done, let me know. For you people, I'm drawing again. If you're having problem, just look at the one. थोड़ा बड़ा बनाओगे तो चलेगा, so that you can easily see the resolution. Take it from CG. This is theta. This is 90 minus theta. This basically becomes theta. Center पे लेके बात करो. So just try to have a 90 degree between two.
जस्ट ट्राई टू हैव अ 90 डिग्री, प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा। ट्राई करो कि दिस शुड गो इन दिस डायरेक्शन, इट्स नॉट द करेक्ट डायरेक्शन, दिस इज द परफेक्ट 90 डिग्री, दिस इज योर इंसाइड डिग्री। ट्राई टू हैव दिस परफेक्ट। सो कार का सीजी लेकर करो, कार के सेंटर में लेकर रिजॉल्व करो चीजें। चाहिए तो पहले ये ड्रॉ कर लो एंड देन सेंट्रीफ्यूगल का ये पार्ट ड्रॉ करो। सेंट्रीफ्यूगल वाला पार्ट पहले साइड में रखो, फर्स्ट ड्रॉ दिस नॉर्मल पूरी तरीके से नीचे की तरफ, पार्ट यहाँ से ये ऐसा, try to have a 90 degree, so if this is like this, make a 90 degree, this should be perfectly 90, you should show that this is 90, आपके डायग्राम में ये 90 दिखना चाहिए and cos theta और sin theta के बीच में। This is your normal, यहाँ से बाहर लगता हुआ there is a mb square by r, जिसको आपका FSP बैलेंस करने वाला है। This and sin theta is particularly balanced for FS also. तो जिस डायरेक्शन में ये आपने बनाया है ना, ट्राई करो कि उसी डायरेक्शन में, दिस इज नॉट गोइंग परफेक्ट एक्चुअली। किसी ने ड्रॉ किया जिसमें ये प्रॉपरली 90 डिग्री बन रहा है? Yes. 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 Try to have this as perfectly 90 degree and not so much set with this part. So जिसका नहीं बना है, try to have it. Try to have it. Try करो कि वो 90 डिग्री दिखे और आपका n sin थीटा पूरी तरीके से बैलेंस करता हुआ दिखे n cos थीटा को। n sin थीटा पूरी तरीके से n cos थीटा को बैलेंस करता हुआ दिखे। Have a habit. चाहिए तो मेरे साथ ट्राई करो। एक्चुअली मैं ये जो एंगल का टिल्टिंग है, आई हैव शोन अ लॉट, इतना बड़ा टिल्टिंग होता नहीं है। अगर आपको परफेक्ट करना है, टिल्टिंग कम कर दो, थोड़ा सा टिल्टिंग कम कर दो तो पॉसिबल है प्रॉपर डायग्राम बन पाना। I'm not having actually scale and everything, इसलिए ये बार बार टेढ़ा मेढ़ा जा रहा है। This is basically your n sin theta and cos theta. ये टिल्टिंग कम कर दो, you will have the diagram perfect. ये जो स्लोप बनाओगे इसको थोड़ा कम कम लेकर बनाओ, स्केल पेंसिल लेकर बनाओ, परफेक्ट बनेगा। जरूरत नहीं, आपको सिर्फ रिजॉल्विंग सीखनी है बेसिकली। You have to understand the resolving part. आपको रिजॉल्विंग पार्ट सीखना है बेसिकली। Actually, कहीं पर भी ना, in your textbook or somewhere they have not shown the diagram of, they have not shown this. डायरेक्टली उन्होंने सिर्फ ये वाला पार्ट रिजॉल्व करके दिखाया है। So even you people can try that. Don't show, अगर परफेक्ट 90 डिग्री नहीं बना रहे हो तो डोंट शो द रिजोल्यूशन ऑफ mb स्क्वायर बाय r, सिर्फ ये बनाओ, नॉर्मल बनाओ, यहाँ से स्केल लेकर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, इट शुड बी अ परफेक्ट परपेंडिकुलर। मेरा बार बार टेढ़ा हो रहा है इसलिए मेरा डायग्राम
मिस्टेक जा रहा है बिकॉज आई डोंट हैव अ स्केल राइट नाउ. सो यू जस्ट ड्रॉ इट एंड जस्ट रिजॉल्व इट एंड ट्राई करो ये ऑब्ट्यूज नहीं दिखना चाहिए. इट शुड लुक 90 डिग्री. सो ये थोड़ा सा मेरा टेढ़ा हो गया बनाते वक्त. अगर मैं इसको स्ट्रेट बनाती तो इट माइट हैव लुक 90 डिग्री. समझ में आया सबको? समझा what I said? So if you'll use a Yes. pencil and a Yes, scale ma'am. now, if you'll have a pencil and a scale, that will take place. मेरा विदाउट स्केल बनने की वजह से ये बार बार टेढ़ा हो रहा है. इट शुड गो स्ट्रेट. अगर मैं इसको थोड़ा स्ट्रेट करूंगी तो मेरा दिस विल फॉर्म 90 डिग्री हो जाएगा. आई डोंट हैव स्केल राइट नाउ. मेरे पास नियर बाय कहीं स्केल नहीं दिख रहा है, इसलिए सबका डायग्राम ड्रॉ हुआ. आई जस्ट बेसिकली वांट अ 90 डिग्री बिटवीन दिस टू. ये आपका जो लाइन है और ये Yes, इनके yes. बीच में आई वांट 90 डिग्री. Yes. एंड cos थीटा एंड sin थीटा यू शुड सी. बेसिकली हमको ये समझना है कि इसका रिजॉल्विंग कैसे हो रहा है. बाकी मुझे कुछ मैटर नहीं करता. 90 50 60 मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता खास. बट we basically when we check the paper we check at this that when you are resolving and sin theta and cos theta उनके बीच में आपका प्रॉपर 90 डिग्री दिखना चाहिए. दैट इज व्हाट आई वांट द मोस्ट. इसलिए मैं बार बार ये ट्राई कर रही हूँ बट आई एम नॉट एबल टू ड्रॉ इट विदाउट स्केल. सबका हो गया ड्रॉ करके? Yes. 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 कोई ऐसा है जिसका नहीं हुआ? चलो रिजॉल्विंग करो. स्टार्ट रिजॉल्विंग. ट्राई टू रिजॉल्व बाय योर ओन. देखो कौन से फोर्सेस कहाँ पे बैलेंस हो रहे हैं. ट्राई टू रिजॉल्व बाय योर ओन. देखो कौन से फोर्सेस कहाँ पे बैलेंस हो रहे हैं. जिस और फ्रिक्शन लिखो खुद से. कंसिडर करना है. फ्रिक्शन कंसिडर करना है. ऑफ कोर्स करना है. Yes. ओके रिजॉल्व करते वक्त ना लीव 5-6 लाइंस. मुझे वहां पे कुछ लिखवाना है. अस्मिता डायग्राम आया? Yes, ma'am. अमित डायग्राम आया? बाकी सबको कोई ऐसा है जिसको डायग्राम नहीं आया? बेसिकली डायग्राम का एक ही कंडीशन है एंड cos थीटा एंड sin थीटा शुड बी परपेंडिकुलर. यूज योर पेंसिल एंड स्केल, यू विल गेट द पार्ट. विदाउट पेंसिल स्केल ट्राई करोगे, अगर थोड़ा सा भी लाइन टेढ़ा मेढ़ा हुआ, यू विल नॉट गेट इट. एलिवेशन ज्यादा मत रखो, एलिवेशन थोड़ा ही रखो. स्लोप थोड़ा कम होगा तो आपको और परफेक्ट मिल जाएगा डायग्राम. एंड मेक अ हैबिट ऑफ ड्राइंग इट. खुद से रिजॉल्व करो और ट्राई करो. Just resolve it and try it.
Just look at this two, n cos theta and n sin theta. Can you see the 90 degree? Yes. 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 Now resolve it. Friction will be of course between the road and the tire. So friction will be somewhere. अगर आपका नीचे का वेलोसिटी, नीचे का सेंट्रीपिटल ज्यादा हो रहा है, n sin theta का कंपोनेंट ज्यादा हो रहा है, तो फ्रिक्शन will somewhere act like this. Geometry से this is theta, this is fs, this becomes fs cos theta, and this becomes fs sin theta, fs cos theta. और ऑफ कोर्स अगर आप आपके mv स्क्वायर का डायरेक्शन भी देखोगे तो you'll find out it is outside. तो दो फोर्सेस इस डायरेक्शन में लग रहे हैं, जिसको एक अकेला कौन बैलेंस कर रहा है, who is balancing, उसको एक अकेला N आपका sin n sin theta. theta बैलेंस कर रहा है. Sin theta. So you can have this diagram. मैम बोलो. मैम सब फोर्स एक पॉइंट से नहीं दिखा सकते. क्योंकि सब फोर्सेस एक पॉइंट से नहीं दिखा सकते, क्योंकि जो फ्रिक्शन होगा ना बेटा वो, और ड्रॉ करते वक्त इट इज नॉट गोइंग सो परफेक्ट, इट दैट इज आल्सो वन ऑफ द रीजन. और खिचड़ी बन जाएगी, वही एक रीजन है और कुछ नहीं. खिचड़ी बन जाएगी, दैट इज ओनली द रीजन, नथिंग एल्स. हमको देखो, हमको ये जो डायग्राम है ना, इससे हमको सिर्फ एक ही चीज सीखनी है. कैन यू पीपल सी माय कैमरा, माय पेज? यस यस. Yes. ये डायग्राम से हमको सिर्फ ये देखना है कि कितने फोर्स इन द डायरेक्शन लगते हैं और कितने फोर्स आउटसाइड द डायरेक्शन. ये डायग्राम से और हमें कुछ नहीं करना है. सो बेसिकली वी आर ट्राइंग अ सिंपलर वन, दैट इज ओनली द रीजन. सो रिजॉल्व कर लिया सबने? Yes. सॉल्व करो, देख लो जरा ऊपर. पहले लेफ्ट में देखते हैं. आपका mv स्क्वायर बाय आर भी बाहर की तरफ भी आएगा इसी डायरेक्शन में. यस यस. Yes. बाहर के डायरेक्शन में कौन से फोर्स लग रहे हैं? fs fs cos theta plus mv Plus square mv square by square r. by r. that is getting balanced by n sin N theta. sin Sin theta. theta. And then ऊपर और नीचे की तरफ देखो, n cos theta Plus fs sin Plus theta. fs sin sin Theta equals to mg. equals to mg. is equal to mg. है ना? यस. Yes. ये mv स्क्वायर को अकेला करो और इसको यहाँ ले आओ. So this is equation number 1, this is equation number 2, and यहाँ पे कंडीशन लिख दो. The condition where v1 is smaller than under root of rg tan theta. v1 is smaller than under root of rg tan theta. तो ये कंडीशन अप्लाइड है. Now your equation 1 becomes fs cos theta minus n sin theta equals to mv square by r. See, I am not very much okay with the diagram. So that is the reason it took me so much time to draw that particular perpendicular one. So you have to make habit of drawing the diagram. That is very clear. Exam में इतना टाइम नहीं लगना चाहिए कि 90 डिग्री नहीं दिख रहा है बार-बार 90 डिग्री पे अटक जाओ. ठीक है? I am not practicing it for many time. That is the reason I am not onto with it. But I know what is going on. क्या चल रहा है वो मुझे पता है. So diagram मैम बेसिकली इम्पोर्टेंट है क्या? डायग्राम सिर्फ हमको इसलिए, इवन अगर मैं एरोज भी करके बता दूं ना कि ओके दिस इज n cos, दिस इज नॉर्मल, दिस इज n cos theta, दिस इज n sin theta, mg नीचे की तरफ लग रहा है, फ्रिक्शन इज दिस डायरेक्शन, फ्रिक्शन हैव टू रिजोल्यूशंस, वन इन दिस डायरेक्शन, वन इज अपर डायरेक्शन, दैट इज ओके. स्लोप वगैरह बना के इतना जरूरी नहीं है. सो स्लोप वगैरह बेसिकली आपके लिए बनाया गया है सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड द थिंग्स इजीली. और उन स्लोप का और कोई मीनिंग नहीं है, मतलब ज्योमेट्रिकली आपको चीजें समझ में आए इसलिए चीजों को बनाया गया है. सो this is, let's say this as equation number 3. Now Minus mv square by r. मींस उल्टा आएगा. minus m, yes minus mv Yes. square by r आएगा. यस. So let's take it, सही कर दो उसको. n sin theta minus fs cos theta equals to mv square by, mv square by r. ठीक है? Yes. Yes. ठीक है. Now here हम लोगों को ये देखना है कि हम लोग ये बोल रहे हैं कि हमारी वेलोसिटी कम होगी तो हमारा सेंट्रीपिटल डोमिनेंट होगा. नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड आउट
कि मैं मेरी वेलोसिटी कितनी कम रख सकती हूँ, मतलब देयर इज अ लिमिट, उसके नीचे कम नहीं कर सकती मैं, आई कैन नॉट गो फॉर लेस देन अ पर्टिकुलर लिमिट। वही हमने किया था कंडीशन फॉर मिनिमम एंड मैक्सिमम, मतलब Yes. मेरी वेलोसिटी कम है पर मैं कितना ऑन अ बैंकिंग रोड में कितना कम तक जा सकती हूँ, हाउ मच मिनिमम आई कैन कीप माय वेलोसिटी। सो दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू फाइंड इट आउट एंड दैट इज वेरी क्लियर दैट यहाँ से पता चल गया कि एफएस हमेशा सेंटर की तरफ लगने वाला फोर्स नहीं है, इट इज ऑलवेज सेल्फ एडजस्ट। ओके, सो लेट्स ट्राई टू हैव द कंडीशन वेयर how much minimum speed is required. So for minimum speed, Fs is equals to mu s into n. ठीक है, what I'm going to do, dividing equation, let's put this as equation number 3, इसको नहीं रखते, dividing equation third from dividing equation 3, किससे डिवाइड कर रहे हैं, from 2, so basically mv square by r divided by mg equals to n sin theta minus fs cos theta divided by n cos theta plus fs sin theta। सबने लिख लिया यहाँ तक? Yes. सारी चीजें वापस Yes. रिपीट करूंगी मैं, रिजोल्यूशन भी वापस रिपीट करूंगी क्योंकि आगे हमको रिजोल्यूशन वापस करना है। सी मेक इट क्लियर, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे रिजॉल्विंग आपके हाथ में नहीं बैठेगा, बिकॉज मुझे बहुत टाइम हो गया है करके। सी इवन being so perfect in physics, still I face problem while drawing the diagrams, not while arranging the forces, while drawing the diagrams. So diagrams तभी हाथ में बैठेंगे जब आप उसको लिख लिख के पढ़ोगे, इसलिए बोलते हैं फिजिक्स लिख लिख के पढ़ना बहुत जरूरी है। Okay, now what we did, we divided the two, we got, अगर आपका m कैंसिल हो जाएगा and you will get v1 square by rg, हर जगह पे v को v1 से सब्स्टिट्यूट कर दो बिकॉज we are having a speed minimum जिसको हमने v1 बोला है। So v1 square by rg n sin theta, f की जगह पे मैं mu s n डाल रही हूँ, cos theta divided by n cos theta plus mu s n sin theta, dividing this whole equation by n cos theta. So you'll get v1 square by rg equals to, अगर आप यहाँ पे n देखो तो हर जगह से n कैंसिल हो रहा है, so this will become, अगर मैं यहाँ पे n डाल दूं, so this will become your tan theta minus mu s divided by 1 plus mu s tan theta। समझ में आया क्या किया? इसको भी n cos theta से डिवाइड किया, इसको भी n cos theta से डिवाइड किया, इसको भी n cos theta से डिवाइड किया, इसको भी n cos theta से डिवाइड, n सबका कैंसिल हो गया, sin theta अपन cos theta tan theta बन गया, cos theta अपन cos theta 1 बन गया, cos theta अपन cos theta, sorry, cos theta अपन cos theta 1 बन गया, mu s is still there, cos theta अपन cos theta is 1 and there sin theta अपन cos theta is tan theta, so mu s tan theta। Is this clear everyone? Yes, ma'am. Yeah. So v1 square is equals to rg times tan theta minus mu s upon 1 plus mu s tan theta. So that is v minimum should be equals to under root of rg tan theta minus mu s upon 1 plus mu s tan theta. This is the formula for a minimum speed on a bank road.
सो कुछ रोड्स ऐसे भी होते हैं जो रफ रोड्स होते हैं, जिनका फ्रिक्शन बहुत ज्यादा होता है। वैसे रोड्स पे क्या होता है, आपका जो टेन थीटा है, ये वाला पार्ट, और ये बेसिकली क्या हो जाता है, टेन थीटा का जो वैल्यू है वो म्यू एस की वैल्यू के बराबर हो जाता है ऐसे रोड्स पे, अगर रोड्स बहुत रफ है तो, फ्रिक्शन बहुत ज्यादा है तो। और जब वो बराबर हो जाता है तो पूरा टर्म इट गोज टू जीरो, मतलब वहां पर आपकी वी मिनिमम स्पीड 0 तक होती है। अब किसी भी स्पीड पे, किसी भी लोवेस्ट स्पीड पे आप उसको रोक सकते हो विदाउट स्लाइडिंग। तो द कंडीशन वेयर योर टेन थीटा बेसिकली इज स्मॉलर देन और इक्वल्स टू म्यू एस। से स्मॉलर देन का तो कोई कंडीशन यहाँ नहीं आता, अंडर रूट में नेगेटिव चला जाएगा, दैट बिकम इमेजिनरी, राइट। सो स्मॉलर देन और इक्वल्स टू दैट इट सिंपली मींस अ जीरो, ठीक है। सो म्यू एस इज स्मॉलर देन और योर टेन थीटा इज स्मॉलर देन और इक्वल्स टू म्यू एस। अगर ये म्यू एस के बराबर हो जाता है तो म्यू एस माइनस म्यू एस जीरो, पूरा टर्म जीरो हो जाएगा। तो वी मिनिमम विल बी जीरो, मतलब वहां पर आप गाड़ी को किसी भी मिनिमम स्पीड पे, जीरो मिनिमम स्पीड पे भी आप गाड़ी को विदाउट स्लाइड हुए रोक सकते हो, उसकी कोई मिनिमम स्पीड नहीं है। मतलब किसी रोड्स पे आप जाओगे तो वहां पे मिनिमम स्पीड इज 3 मीटर पर सेकेंड, मिनिमम स्पीड इज 4 मीटर पर सेकेंड, बट यहाँ पर मिनिमम स्पीड है जीरो। आप जीरो स्पीड पे भी लाके गाड़ी को विदाउट स्लाइडिंग हुए आप गाड़ी को रोक सकते हो, विदाउट स्लाइडिंग आपकी गाड़ी रुक जाएगी। बट फॉर सच कंडीशंस your road should be very rough so that you can provide a proper friction। और आपका टेन थीटा का वैल्यू म्यू एस से छोटा या फिर म्यू एस के बराबर हो जाए तो you can get this condition। अब मैं सारी चीजें वापस रिपीट कर रही हूँ, ठीक है, ध्यान से सुनो। मैंने सबसे पहले कहा कि हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग मिनिमम फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसा रोड कंसीडर करेंगे, वी आर गोइंग टू कंसीडर बैंकिंग रोड। बैंकिंग रोड में अब हम फ्रिक्शन को पिक्चर में लाने वाले हैं और देखने वाले हैं कि फ्रिक्शन किस तरीके से बिहेव करता है। मैंने कहा आपको, आप इन सब कंडीशन से पहली चीज सबसे ये सीखोगे कि फ्रिक्शन जो होता है वो सेल्फ एडजस्टिंग होता है, मतलब जरूरी नहीं है कि हमेशा फ्रिक्शन का डायरेक्शन टुवर्ड सेंटर ही लगे। आज तक हम सीखते आ रहे थे कि सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करने वाला फ्रिक्शन होता है, बट मैंने बाद में आपको बताया कि ऑफकोर्स बहुत सारी जगहों पर सेंट्रीपिटल देने, जहां पर बैंकिंग नहीं है वहां पर सेंट्रीपिटल देने का काम फ्रिक्शन ही करता है, बट जहां पर बैंकिंग है वहां पर फ्रिक्शन के कुछ और रोल्स भी होते हैं। और इस चीज को समझाने के लिए मैंने इससे पहले वाले लेक्चर में आपको बताया था कि फ्रिक्शन इज सेल्फ एडजस्टेबल, वो अपने हिसाब से अपने आप को एडजस्ट करता है, ठीक है। एंड देन व्हाट आई सेड, नेक्स्ट पार्ट, ये डेरिवेशन करते वक्त आपको बेसिकली बहुत ज्यादा जो ध्यान देना है वो ये देना है कि आप जो डायरेक्शंस ड्रॉ कर रहे हो फोर्सेस के बैलेंस करते वक्त वो प्रॉपर बने। बाकी डायग्राम अगर बुरा बनता है कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है डायग्राम से, जस्ट ये ध्यान देना है कि mg पूरा नीचे की तरफ आ रहा है, n एक एंगल पे लगा हुआ है, n cos थीटा और n sin थीटा के बीच में 90 डिग्री है। ये तीन चीजें आपको डायग्राम बनाते वक्त ध्यान देनी है। पहला, n एक एंगल पे लग रहा हो, थीटा वो दिखना चाहिए कि इट इज स्लैंटिंग, सीधा नहीं दिखना चाहिए। दूसरा, mg सीधा नीचे की तरफ आ रहा है। तीसरा, n cos थीटा और n sin थीटा के बीच में 90 डिग्री बन रहा है। कीप इट इन माइंड, अगर मेरी प्रैक्टिस खत्म हो गई, अगर प्रॉब्लम मेरे से हो सकती है तो प्रॉब्लम आपसे भी हो सकती है। तो आई एम अ टीचर, बिकॉज मेरा हाथ से वो रिमूव हुआ है तो वो ड्रॉ नहीं हो रहा है, तो आप लोगों को प्रैक्टिस करना पड़ेगा परफेक्ट इन कंडीशंस को लाने के लिए। मैम इनसे कुछ फर्क पड़ता है क्या? नहीं, आपका टीचर जब डायग्राम करेक्ट देखता है तो उसको फील हो जाता है कि ओके आपको रिजॉल्विंग आता है। बाकी हमें जो मेन हमारा जो मैटर है वो हमको ये है कि हमको हमारे फोर्सेस के डायरेक्शन देखने हैं और कौन किसको बैलेंस कर रहा है वो देखना है। Is this clear what I said? Is this everyone clear what I said? Yes. Yes. ठीक है, नेक्स्ट। अच्छा बच्चों, कंसेप्चुअली चीजें क्लियर हो रही है ना मैं जो भी समझा रही हूँ, क्योंकि इसका कंसेप्ट समझना जरूरी है, Yes, ठीक है। ma'am. Yes, ma'am. अब ये हमारा रोड है, देखो मैंने यहाँ पर मैंने 2-3 टाइम्स बाजू में ट्राई किया एंड आई फाउंड इट टू बी करेक्ट। एंड मैंने ऐसा एक एंगल पे डाला है, देखो यू कैन सी इट इज एट एन एंगल थीटा, राइट। 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे ना आपके हाथ पे, आपको 5-6 बार लगेगा, मेरे को 1-2 बार में इट विल बी लाइक ओके फॉर मी। सो एन एक एंगल पे लगा है, mg सीधा नीचे आना चाहिए, n cos थीटा और n sin थीटा के बीच में परफेक्ट 90 डिग्री बनना चाहिए। दिस इज द 3 कंडीशंस रिक्वायर्ड फॉर ड्राइंग दिस डायग्राम। अब मैंने ये रिजॉल्व किया
n sin थीटा। अब यहाँ पर मैं रोड और टायर के बीच में फ्रिक्शन रिजॉल्व कर रही हूँ। सो मैंने कहा कि मेरा कंडीशन है कि मैंने जो स्पीड ली है वो कम ली है, तो अगर मैंने मेरी स्पीड मैक्सिमम स्पीड से कम ली है और मेरा पिटल फोर्स डोमिनेंट हो रहा है, तो मेरा जो जो मेरा फ्रिक्शनल फोर्स होगा वो ऊपर की तरफ लगेगा और मेरा जो गाड़ी है, मेरी जो व्हीकल है, उसको नीचे आने से रोकेगा। सो जिस डायरेक्शन में सेंट्रीपिटल n sin थीटा मुझे नीचे की तरफ खींच रहा है, क्योंकि n sin थीटा मुझे यहाँ इस कंडीशन में n sin थीटा सेंट्रीपिटल प्रोवाइड कर रहा है। तो जब मेरी स्पीड कम है तो सेंट्रीपिटल डोमिनेंट है, सेंट्रीपिटल डोमिनेंट है मतलब ये डोमिनेंट है और ये डोमिनेंट है, तो इस चीज को बैलेंस करने के लिए फ्रिक्शनल फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, मतलब बाहर की तरफ लगेगा। वो दो पार्ट में रिजॉल्व होगा, दैट विल बी Fs cos थीटा एंड Fs sin थीटा। इज दिस एवरीवन क्लियर व्हाट आई सेड? आप इसको Yes. ज्योमेट्री के थ्रू भी देख सकते हो। Yes, इफ यू ma'am. ड्रॉ पैरेलल एंड यू ड्रॉ ट्रांसवर्स, you will find that this two are equal, that is it is equal to theta. Now this is Fs cos theta, Fs sin theta. अब सिंपली क्या करना है, आपको सारे फोर्सेस जो एक डायरेक्शन में है और कौन किसको बैलेंस कर रहा है वो देखते चले जाएंगे। जब हमने देखा, हमको पता है कि हमारा फ्यूगल फोर्स तो बाहर की तरफ लगने वाला है, तो Fs cos theta और फ्यूगल फोर्स का डायरेक्शन सेम होगा, सो दे विल बी ऑन द वन साइड, जो कि बैलेंस हो रहे हैं किससे, n sin थीटा से बैलेंस हो रहे हैं। दिस इज पर्टिकुलरली वेरी मच क्लियर, राइट? देन हमने देखा कि Yes. ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ के फोर्सेस क्या है। ऊपर की तरफ हमारा लग रहा है n cos थीटा और Fs sin थीटा, इन दोनों को हमने लिख दिया। ये दोनों मिलकर किसको बैलेंस कर रहे हैं? हु इज बैलेंसिंग द mg, So mg is being balanced by your n cos theta and Fs sin theta. So n cos theta plus Fs sin theta will be equal to mg. अब मैंने क्या किया, इसको जरा सा what I can say, थोड़ा सा अलग वे में लिखने की कोशिश की है। So what I have done, थोड़ा सा सेल्फ एडजस्टमेंट किया है। मैंने mv स्क्वायर बाय r को ये साइड भेजा, n sin थीटा को यहाँ लिया, माइनस साइन को अंदर रिजॉल्व किया, तो मुझे ये n sin थीटा माइनस Fs cos थीटा इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r आ गया। अब इस इक्वेशन को मैंने इक्वेशन नंबर 2 मतलब दिस इक्वेशन से डिवाइड कर दिया, डिवाइडिंग इक्वेशन नंबर 3 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। दिस इज वेरी मच क्लियर। जब मैंने इक्वेशन 3 को इक्वेशन नंबर 2 से डिवाइड किया, उसके बाद मैंने कहा कि सिंस आई एम टॉकिंग अबाउट द मिनिमम स्पीड, मेरा जो फ्रिक्शनल फोर्स का मैंने आपको बताया था कि μs into n, ये कंडीशन कब लगता है, जब आपका या तो मिनिमम स्पीड हो या तो मैक्सिमम स्पीड हो, राइट? सबसे मिनिमम स्पीड होती है तो आपको ये Yes. कंडीशन लगाना है, और जब सबसे मैक्सिमम स्पीड होती है तो आपको ये कंडीशन लगाना है, क्योंकि बीच में फ्रिक्शन क्या होता रहता है, डू यू रिमेंबर? वैरी होते रहता है, वैरी वेरी होते रहता है। तो हम लोगों का जो कांस्टेंट म्यूएस वाला पार्ट आता है वो हमको तभी लगाना है जब हमारा या तो स्पीड बहुत कम है या तो स्पीड बहुत या तो स्पीड बहुत कम है या तो स्पीड बहुत ज्यादा है। Max. अगर बीच में कहीं पर है, अगर स्पीड ना कम है ना ज्यादा है, तो डायरेक्टली आप इस कंडीशन के साथ नहीं जा सकते, क्योंकि म्यूएस की वैल्यू स्पीड के हिसाब से चेंज होती है, ठीक है? सो Yes. सो अभी मेरा स्पीड मिनिमम है, तो मैं Fs को μs into n लिख सकती हूँ। कीप इट इन माइंड, Fs को μs into n तभी लिखा जा सकता है जब या तो आपकी स्पीड मिनिमम हो या तो आपकी स्पीड मैक्सिमम हो। अगर बीच में कहीं है तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि फ्रिक्शन का वैल्यू कैन चेंज, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कैन चेंज। दिस इज वेरी मच क्लियर। सो आई एम राइटिंग Fs as μs into n, when I am writing Fs as μs into n, और उसके बाद मैंने क्या किया, डिवाइडिंग थर्ड बाय सेकंड। आप Fs को यहीं सब्स्टिट्यूट कर दो, आगे जाके सब्स्टिट्यूट करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? सब्स्टिट्यूशन एंड ऑल के बाद व्हाट वी गॉट द इक्वेशन एज, हमारा मास एंड मास गॉट कैंसल्ड, वी गॉट v1 स्क्वायर बाय rg इज इक्वल्स टू n sin थीटा। Fs की जगह पे मैंने μs into n डाल दिया, cos थीटा अपॉन n cos theta plus μs into n sin theta. Now what I am doing, I am dividing the whole equation by n cos theta. जैसे ही मैंने सारे इक्वेशन को n cos theta से डिवाइड किया, उसके बाद मेरे इस n ने सारे n को कैंसिल कर दिया। cos theta sin theta अपॉन cos theta tan theta बन गया, cos theta अपॉन cos theta 1 बन गया, तो ये μs वैसे का वैसे ही रह गया। cos theta अपॉन cos theta is 1, sin theta अपॉन cos theta will give you, ये μs वैसे ही लिख दो, sin theta अपॉन cos theta will give you tan theta. Is this everyone clear what I said? Yes. So you got the equation as v1 square by rg is equals to tan theta minus μs upon 1 plus μs tan theta. Now इसको थोड़ा सा और रिजॉल्व करते हैं, आगे जाते हैं। You will get the v minimum as under root of rg tan theta minus μs upon 1 plus μs tan theta. Now I said कि अगर आपका रोड रफ है
अगर आपका रोड इतना फ्रिक्शन प्रोवाइड कर पा रहा है कि वैल्यू tan थीटा के बराबर हो जाए, तो क्या होगा, आपका जो मिनिमम स्पीड होगा इट विल कम टू 0, मतलब आप अपनी स्पीड को एकदम 0 पे ला सकते हो बिना किसी स्लाइडिंग के। वरना आपकी रोड पे चलने के लिए एक मिनिमम स्पीड, बैंकिंग रोड पे चलने के लिए एक मिनिमम स्पीड और एक मैक्सिमम स्पीड का लिमिट होता है। बट अगर आपका रोड रफ है, प्रॉपरली उसके अंदर फ्रिक्शन है जो कि tan थीटा को बैलेंस कर सकता है, तो आपका फिर मिनिमम स्पीड ऐसे कंडीशंस में इट विल गो टू 0। वहां पर आप गाड़ी का स्पीड 0 ले जा सकते हो विदाउट स्लाइड। इज दिस एवरीवन क्लियर व्हाट आई सेड? मैम ये नॉर्मल रोड्स के लिए tan थीटा अगर म्यूएस के इक्वल किया तभी भी वो वैलिड रहेगा ना, v मिनिमम इक्वल्स टू 0? ट्राई कर सकता है, वी कैन ट्राई, यस वी कैन हैव इट, या। बट अगर नॉर्मल रोड्स के लिए आप करते भी हो तो ये बैंकिंग वाला कंडीशन आपको झुक के लाना पड़ेगा। ये जो थीटा वाला कंडीशन, ये आपको झुक के लाना पड़ेगा, क्योंकि वहां पर फिर Yes. बैंकिंग नहीं होगा प्रोवाइड करने के लिए, समझे? और आपको क्या पता आपका जो रोड का सरफेस है वो कितना म्यूएस है, तो कैसे डिसाइड करोगे वो कंपोनेंट कि कितना झुकोगे कि यू विल गेट द प्रॉपर पाथ, समझा? इसलिए बैंकिंग का Yes. इफेक्ट लाया गया, दैट इज ओनली द रीजन कि बैंकिंग लाया गया। हालांकि ये बैंकिंग हर जगह होना चाहिए, जहां जहां पे टर्न्स होते हैं ना, शार्प टर्न्स जहां जहां पे होते हैं, हर जगह पे ये बैंकिंग वाला कंसेप्ट आना चाहिए। पर सिंस अवर कंट्री इज नॉट दैट मच रिच, तो जो पर्टिकुलरली बहुत खतरनाक हाईवेज है टर्निंग वाले, वहीं पर ये बैंकिंग वाला ज्यादा देखने के लिए मिलता है। पर आप बाहर की कंट्रीज में देखोगे तो मोस्टली हर जगह पे जहां पे भी सर्कल बन रहा है आपको बैंकिंग देखने के लिए मिलेगा, मतलब थीटा आपको एलिवेशन आपको देखने के लिए मिलेगा। सेम एलिवेशन आपको आपके जो रेलवे ट्रैक्स होते हैं ना, तो रेलवे ट्रैक्स भी कंटिन्यूसली टर्न होते रहते हैं। अगर आप उसको कभी ऑब्जर्व करो ध्यान से, देयर कंटिन्यूसली टर्निंग, वहां पे भी एलिवेशन किया जाता है। आपका एक पहला वाला ट्रैक और दूसरा वाला ट्रैक हमेशा एक ही एंगल पे नहीं होता, एक थोड़ा सा ऊपर होता है, दूसरा थोड़ा नीचे होता है, यही सारी चीजें प्रोवाइड करने के लिए, समझा? तो वहां पर भी एक फॉलो Yes. करने की कोशिश की जाती है। Yes, ma'am. ये ठीक है, ये हो गया, सबका हो गया ये। Yes, ma'am. Yes. Yes, ma'am. चलो लेट्स मूव अहेड विद द मैक्सिमम। मैक्सिमम कर लेते हैं, ये टॉपिक यहाँ पे कर लेते हैं, फिर हम सीधा नेक्स्ट टाइम इसके ऊपर थोड़े सम्स करेंगे एंड देन वी विल गो टू न्यू टॉपिक। हो सकता है तो मैं सम आपको बोलो बच्चा। आप कुछ नोट डाउन कराने भी वाले थे ना? वो 4-5 पॉइंट्स थे ना? हाँ, 4-5 लाइन छोड़ने बोला था डायग्राम बनाते हाँ टाइम। ठीक है, हाँ वो मैं लिखवा दूंगी बाद में, पहले हम ये कर लेते हैं, ठीक है? हमें हो गया मिस पहले। चलो पहले ड्रॉ करो। नाउ आई एम सेइंग दैट फ्यूगल इज बीइंग डोमिनेंट, मतलब v का स्पीड ज्यादा है और हमको मैक्सिमम स्पीड लाना है कि भाई कितनी मैक्सिमम स्पीड we can go for. So of course v1 is greater। और अगर फ्यूगल ज्यादा है तो अब पीटल फोर्स किसको बैलेंस करेगा? जो ज्यादा होता है ना पीटल फोर्स, उसको कभी सॉरी जो ज्यादा होता है ना आपको फ्रिक्शनल फोर्स, कभी उसको बैलेंस करने की कोशिश नहीं करता। सेंट्रीपिटल के अलोंग रहेगा। यस, सो अब आपका जो फ्रिक्शनल फोर्स है जो ज्यादा होता है उस डायरेक्शन में कभी नहीं लगता, उससे अपोजिट डायरेक्शन में लगकर चीजों को बैलेंस करने की कोशिश करता है। दिस इज व्हाट आई वांटेड टू से। उल्टा पुल्टा स्टेटमेंट जा रहा था, स्टेटमेंट फिर से सुनो। मैंने कहा कि अगर अब यहाँ पर फ्यूगल ज्यादा हो रहा है तो अब आपका फ्रिक्शनल फोर्स फ्यूगल के डायरेक्शन में नहीं लगेगा, अब उससे अपोजिट डायरेक्शन में लग के फ्यूगल को बैलेंस करने की कोशिश करेगा कि फ्यूगल ज्यादा ना लगे और फ्यूगल की वजह से कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। मतलब बाहर की तरफ गाड़ी का जो आउटवर्ड फोर्स है उसको वो पिटल के साथ मिलकर बैलेंस करने की कोशिश करेगा। कुछ समझ में आया मैंने क्या स्टेटमेंट पास किया? Yes. Yes, ma'am. Yes. मतलब दिस Centripetal time- force और बोलो बोलो मैम यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स और फ्रिक्शनल फोर्स दोनों भी बैलेंस करेगा सेंट्रीफ्यूगल को। यस यस दैट्स वेरी ट्रू, दैट्स वेरी ट्रू। मैं इसका फॉर्मूला ऐसा है, उधर जिधर माइनस था ना उधर प्लस आ गया और जिधर माइनस था प्लस आ गया। यस यस वैसा ही कुछ जाएगा क्योंकि कंडीशन भी वही है। बाकी लोग जरा ट्राई करो, पहले इसको रिजॉल्व करो। इसका रिजॉल्विंग बहुत अच्छे से करना, परफेक्ट 90 डिग्री दिखना चाहिए। पहले n को अगर रखना है तो पहले n को एक एंगल पे डाल दो। n को एक एंगल पे डालने के बाद mg को स्ट्रेट नीचे की तरफ खींच लो।
जाना चाहिए mg। फिर उसी तरीके से उसको ऊपर की तरफ लेके जाओ और इसको परपेंडिकुलर इस डायरेक्शन में, it should be perfect 90 degree. So this is n, this is n cos theta, n sin theta, this is mg, right? अब फ्रिक्शनल फोर्स कुछ ऐसा लग रहा है नीचे की तरफ। फ्रिक्शनल फोर्स के रिजोल्यूशंस करोगे तो ऐसे जाएंगे। दिस इज एफएस नाउ। अब फ्यूगल डोमिनेंट हो रहा है ना, तो फ्रिक्शनल फोर्स विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ पीटल। सो डायरेक्शन ये थीटा है, ये देखो अल्टरनेट एंगल है। Yes. दिस इज थीटा, दिस विल बी थीटा। सो दिस सिंपली बिकम्स योर FS cos theta नीचे का एफएस cos थीटा and this is your fs sin theta. Just look at this. यस So इसलिए ये fs cos theta हो गया और ये नीचे वाला fs sin theta हो गया। सबको समझा रिजॉल्व कैसे किया? यस बहुत समझा? यस सुबोध समझा? यस मिस समझा। Okay. What about other people? दीपेश है लेक्चर में? Yes, ma'am. समझ में आ रहा है? Yes, ma'am. What about Kinjal, Jennifer? Is this clear? Yes, ma'am. Manali, Jocelyn, Yes, ma'am. Yes, ma'am. Anuj, I'm talking to everyone over here. सबको समझ रहा है? What we are going with? Yes. यस अच्छा, सेम कंसेप्ट से जाकर मुझे आप लोग कल मैक्सिमम स्पीड निकाल कर दे सकते हो विद